جماعت اسلامی شہر حیدرآباد کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس کا مقصد معاشرے میں پھیلتے ہوئے جرائم کے اسباب اور ان کو کیسے روکا جا سکے۔ اس پروگرام میں کئی دانشوروں نے خطاب کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس پریس میٹ میں مختلف میڈیا چینلز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا استقبال کرتا ہوں جماعت اسلامی شہر حیدرآباد کی جانب سے۔ جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد میں ایک معروف تحریک ہے، نہ صرف شہر بلکہ کل ہند سطح پر، آل انڈیا لیول پر جماعت اسلامی ہند مختلف دینی، سماجی اور اخلاقی خدمات میں مصروف ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایک غیر سیاسی نیشنل لیول کی تحریک ہے جو مختلف سماجی اور سماج کی اصلاح اور پھر مختلف امور پر کام انجام دیتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی مقصد انسانی سماج کی فلاح، سماج کی تعمیر اور پھر سماج کی اصلاح ہے۔ جماعت اسلامی ہند اپنے دستور کے مطابق پرامن اور تعمیری طریقے سے کام انجام دیتی ہے۔ آپ لوگ ان تمام سے واقف ہیں۔ جماعت کا بنیادی ویژن جہاں ایک بہتر معاشرے کی تعمیر ہے، وہی ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں تمام انسانوں کی جانوں کا احترام کیا جائے، انسانوں کی جانوں کو عزت وقار کے ساتھ محفوظ رکھا جائے، انصاف، امن اور مساوات کو فروغ ملے۔ جماعت مذہب، زبان، ذات یا فرقے کی بنیاد پر بالکل امتیاز نہیں کرتی۔ انسان پہلے اپنے شناخت کی وجہ سے انسانیت اہم ہے اور جماعت اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ مختلف مواقع پر جماعت نے مہمات کو چھیڑا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں پچھلے مہینے میں ہم نے حقوق ہمسایہ کے تحت ایک مہم بنائی ہے کل ہند سطح پر۔ اس سے قبل برائی مٹاؤ مہم، پھر کبھی مذہبی عنوانات پر اور کبھی نوجوانوں کی تربیت اور ترغیب کے لیے ہم مختلف مواقع پر مہمات مناتے ہیں، اور مہمات جماعت اسلامی ہند کے لیے نئی نہیں ہے۔ اور یہ مہم جو ہم احترام انسانیت کے نام سے 18 تاریخ سے 31 جنوری 2026 منانے والے ہیں، جس کا آج لانچنگ پروگرام بھی ہے، اور پھر آپ تمام کے ذریعے ہم سماج تک اس پیغام کو عام کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ مہم کوئی وقتی رد عمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حالیہ چند واقعات کی بنیاد پر ہم یہ مہم بنا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایک مسلسل عمل ہے، اور ہم اپنے تمام پروگرامز کے ذریعے، اپنے کیڈر کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، اور ہم احترام انسانیت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور پھر مختلف حالات کی وجہ سے ایک فوراً ہم نے اس مہم کو لانچ کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں قتل کے جو واردات شہر حیدرآباد میں ہم نے دیکھا ہے، اور پھر مسلسل گزشتہ 1.5-2 ماہ میں مسلمانوں کے کئی قتل کے واردات، اور پھر ان واردات میں ملوث ہونے والے مسلم حضرات کی جب یہ وارداتیں ہمارے سامنے آئی، اور پھر تشدد کے مختلف واقعات بھی ہمارے سامنے آئے، پھر نوجوانوں میں نشے کا استعمال زیادہ ہوا، اور پھر انسانی جان کے تئیں بے حسی ہمارے سامنے آئی، تو یہ واقعات نے اس واقعات کو صرف قانونی طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سماج کے مختلف طبقات کے لوگ، مذہبی تنظیموں، سماجی تنظیموں، NGOs، یہ سب جب اس واقعات کی اور پھر تشدد کے خاتمے کے لیے آگے اگر بڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سماج کے سدھار کے لیے اور سماج کی بہتری میں کچھ اہم مدد ملے گی۔ لہذا جب معاشرے میں جان کی قدر ختم ہو جائے، جب معاشرے میں جان کی قدر ختم ہو جائے تو قانون اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے اس مہم کو لانچ کیا ہے۔ یہ مہم کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے،
किसी सियासी मकसद के लिए भी नहीं है, किसी मखसूस तबके के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसानियत को बचाना चाहता है। और ये वाज़ह पैगाम हम देना चाहते हैं कि इंसानी जान का एहतराम एक आफाकी कदर है, इसे फिरकावारियत में नहीं बांटा जा सकता। और नशा की जो वारदात हमारे सामने आ रहे हैं और फिर खुसूसन नौजवानों की बड़ी तादाद नशा में मुलविस हो रही है। और टोली चौकी में एक सियासी लीडर से जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि टोली चौकी में 40% नौजवान नशे का इस्तेमाल करते हैं। इन संगीनी हालात, ये सिर्फ टोली चौकी जैसा इलाका नहीं है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नशा की मुख्तलिफ चीज़ें हमारे नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे उनकी सेहत भी बिगड़ रही है और ये बेमकसद ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बेकार हो रही हैं। लिहाजा हमने इस कत्ल के जो वारदात हुए हैं, हमने न सिर्फ कत्ल के वारदात बल्कि उसके पीछे जो वजूहात रही है, कत्ल के पीछे उन वजूहात को भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। कभी नशा इस कत्ल के पीछे रहा है, कभी इलीगल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, कभी नौजवान बच्चियों की छेड़छाड़ के वाकयात हमारे सामने आए हैं। पॉजिटिव वे में इंसानियत के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इस बात की भी कोशिश की जाएगी। एक और हमारी एक्टिविटी होगी, वो वीडियो के जरिए से हम पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ स्लम एरियाज में और बड़े जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर वीडियोस के जरिए से हम वैन पर वीडियो प्ले करेंगे स्क्रीन के जरिए से, और उस वैन के जरिए से हम मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि जो बुराइयों में इस वक्त समाज मुब्तला है, खासतौर से कत्ल के वाकयात हों या दीगर डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात हों या मनशियात के जो जिस बुराइयां हैं, इससे अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि इसके क्या खराब असरात जो है उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि लाइफ स्किल वर्कशॉप रखे जाएंगे ताकि जिंदगी को बेहतर और अच्छे अंदाज में और पॉजिटिव वे में किस तरह लोग गुजार सकें। एंटी ड्रग रैलीज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ आबादियों में हम नौजवानों को लेकर ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि किस ड्रग्स के क्या सब्सटेंसेस हैं और किस तरह जो है इससे जो है बचा जा सकता है और किस तरह इससे जो है छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी हम डेयर के जो है ताउन के साथ करेंगे, जो हमारी जिली तंजीम है, वो ये है कि जो है हम इन आबादियों में मेडिकल हेल्थ कैंप करने जा रहे हैं। ये मेडिकल हेल्थ कैंप की नौयत आम मेडिकल हेल्थ कैंप की तरह नहीं होगी, बल्कि वो नौजवान जो एडिक्टेड है, किसी तरह का भी सब्सटेंस लेते हैं जिससे वो एडिक्ट हैं, तो उससे उनको किस तरह जो है उनको बचाया जा सके, इसके लिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, नशा मुक्त भारत और टेलीमानस जो स्कीम है उसको भी जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बाकायदा उनके साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से साइकेट्रिस्ट की मदद से उनकी जो है काउंसलिंग की जाएगी और किसी तरह उन खानदानों को, उन नौजवानों को जो है इस नशे की लत से जो है हम बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस नशे की लत में जो मुब्तला नौजवान है, सबसे बड़ा मसला उनके अपने खानदानों का सपोर्ट है। हम ये देख रहे हैं कि वालिदैन बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद तो हैं, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट, जो नफ्सियाती सपोर्ट उन नौजवानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो हम वालिदैन की भी तरबियत करेंगे ताकि वो इस बात से आगाह हों कि ये जो इस वक्त उनके बच्चों में, उनके नौजवानों में जो बीमारी पाई जाती है, उसको सिर्फ जो है नफरत के जरिए से, गुस्से के जरिए से हल न किया जाए, बल्कि काउंसलिंग के जरिए से, इफाम तफहीम के जरिए से, हमदर्दी के जरिए से, मोहब्बत के इजहार के जरिए से जो है इस पर काबू पाने की कोशिश की जाए। तो ये काम भी इंशाल्लाह हम करेंगे। नौजवानों को बामकसद जो है जिंदगी गुजारने के लिए वर्कशॉप हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। फिर साथ ही साथ इन 15 दिनों के अंदर, जैसा आप हजरात के जरिए से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसी तरह वक्तन फौक्तन हमारे जो एक्टिविटीज होंगे, हम चाहेंगे, बल्कि आपसे दरख्वास्त भी हम कर रहे हैं कि इसको चूंकि अवेयरनेस कैंपेन भी है और फील्ड वर्क भी है, तो अवेयरनेस कैंप में जो है, कैंपेन में जो है आप हमारा साथ दें ताकि बड़े पैमाने पे मासेस में जो है हम अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इस वक्त टूल है लोगों तक पहुंचने का, और आप इस पर काम कर रहे हैं। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि हमारे सोशल मीडिया के जो हैशटैग्स हैं, हमारे जो रील्स हैं, हमारे जो वीडियोज हैं, जो हमारी एक्टिविटीज के फिल्म बनने जा रहे हैं, उसको जरूर आप अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से, आपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से लोगों तक पहुंचाएं ताकि बड़े पैमाने पे शहर के अंदर एक अवेयरनेस का काम अंजाम दिया जा सके और लोग इन बुराइयों से बचने के लिए आमदा हों और एक अच्छी सोसाइटी की बिना हम डाल सकते हैं, एक अच्छा
साले माशरा और अच्छे नौजवान जो है हम सोसाइटी को दे सकें। चुनाचे ये 15 दिन में इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अंजाम देंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इसका भरपूर हिस्सा बने, और जो साथी नहीं आए हैं आपसे दरख्वास्त है कि उन तक भी चीज़ें पहुँचाएँ, ताकि वो सब जो है इस कैंपेन में हमारे साथ जो है शरीक हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया के साथियों और यूट्यूबर्स, जैसा कि आपके सामने एहतराम इंसानियत मुहिम के सिलसिले में कुछ तफसीलात मोहतरम डॉक्टर सैयद मुबश्शिर अहमद साहब नाज़िम शहर ने पेश की हैं। दरअसल ये मुहिम के मकासद में जो अहम मकसद रहा है वो माशरे में तेज़ी से फैलते हुए जराइम, कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात और मनशियात और दीगर जराइम के जो असबाब हैं इस वक्त माशरे के अंदर, उसको एड्रेस करना है। जमात इस्लामी शहर हैदराबाद हर बार की तरह मिल्लत के इन हसास इशूज़ को एड्रेस करने के लिए हर तरह की कोशिशें, वो ग्राउंड वर्क हो, वो फ़िक्री तरबियत हो, इस पर काम करती रही है बरसाल बरस से। जमात के क़याम के दौरान ही बल्कि क़याम के वक्त ही से इस बात की कोशिश की जाती रही कि जहाँ मिल्लत में इस्लाह का काम किया जाए, दावत का काम किया जाए, वहाँ इंसानों से मुताल्लिक़ जो अहम मसाइल हैं, जो बर्निंग इशूज़ हैं, उसको भी एड्रेस किया जा सके। चुनांचे शहर हैदराबाद के हमारे 38 मुकामी जमातें, जो 38 मुकामी जमातें हैं, इस वक्त हमने इन पूरे मुकामी जमातों को एक्टिवेट किया है। इसका हमारा पूरा कैडर, हमारे अरकान, कारकुनान, मर्द व ख़वातीन, हमारी GIO की लड़कियाँ, SIO, जमात की जो ज़ैली तंजीमें हैं, डेर और PSF, ये तमाम तंजीमें, ज़ैली तंजीमें और जमात का पूरा कैडर इस वक्त मैदान अमल में काम को अंजाम दे रहा है। आज से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम का आगाज़ हुआ है। इन अय्याम में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि पहले मरहले में बड़े पैमाने पे अवेयरनेस पैदा किया जा सके, ख़ास तौर से मिल्लत इस्लामिया के अंदर मसाजिद के ज़रिए से, खुतबात जुमा के ज़रिए से और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए से नौजवानों को इंगेज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके क्या मुज़िर असरात, क्या भयानक असरात जो है उनके ख़ानदान पर, उनकी ज़ात पर और माशरे पर पड़ सकते हैं, उससे आगाही दी जाएगी। एहतराम इंसानियत इस मुहिम का नाम रखा गया है। ह्यूमन डिग्निटी, अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी के उन्वान से ये मुहिम इस 15 रोज़ में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मनशियात से मुताल्लिक़ अवेयरनेस नौजवानों में पैदा किया जा सके। मुख्तलिफ वो मकामात जहाँ पर हमारे नौजवान इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, वहाँ हमारा कैडर जाएगा, उनसे इंटरेक्ट होगा, उनको इंगेज करेगा और उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्हें बताया जाएगा कि जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनकी सेहत पर और ख़ुद उनके माशरे पर, उनके ख़ानदान पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये काम भी अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मसाजिद को मरकज़ तरबियत बनाया जाए। ख़ास तौर से मसाजिद का अब जो इस्तेमाल है वो बहुत ही महदूद है। जमात इस्लामी इस बात की कोशिश करेगी कि तमाम मकतब फ़िक्र के अफराद, ख़्वाह वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो सोशल एक्टिविस्ट हों, वो सियासी लीडर हों, तमाम मिलकर, क्योंकि सोसाइटी और इंसानियत का मसला है, तो इसमें ज़रूर अपना रोल प्ले करें और अवेयरनेस के काम में और माशरे की इस्लाह के अंदर वो जो है अपना हिस्सा अदा करें। इसी तरह हम इस बात की कोशिश करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर से आपने भी बात सुनी है कि बहुत ही कम जो है उम्र से बच्चे इस लत में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ एडिक्शन में पढ़ रहे हैं। तो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और हमारे कैडर्स इस बात की कोशिश करेगा कि स्कूल्स के दौरे किए जाएँ, वहाँ PPT प्रेजेंटेशन पेश किए जाएँ, हेल्थ अवेयरनेस लेक्चर्स बच्चों को दिए जाएँ, मेंटल वेल्थ बीइंग के लेक्चर्स उनको दिए जाएँ ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और मुमकिना इन बुराइयों से, इन लतों से जो है बच सकें। जिम्स का हमारा कैडर दौरा करेगा। मुख्तलिफ जो हेल्थ क्लब्स शहर में पाए जाते हैं उनमें हेल्थ अवेयरनेस के लेक्चर दिए जाएंगे। वो सब्सटेंस जो बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेहत के लिए न सिर्फ हम आपके शिरकत के खैर कदर करते हुए आपका इस मुहिम को निहायत अहम, इसका कैंपेन का जो मकसद है वो आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथ सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मुबश्शिर अहमद साहब नाज़िम शहर हमारे साथ है और इस कैंपेन के कन्वीनर
आजम अली बेग साहब भी हमारे साथ इस प्रेस मीट में हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आगे बढ़ते हुए सिटी प्रेसिडेंट नाज़िम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद से गुजारिश करता हूँ कि इस कैंपेन का मकसद, इसमें करने वाले एक्टिविटीज़ और इसका कैंपेन को लॉन्च करने का रीज़न आपके सामने पेश करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब में मुब्तला और सूद पर जो रकम ली गई थी उसकी अदायगी न करने की वजह से कत्ल के वारदात भी हुए हैं। कभी मामूली छोटी छोटी बातों पर भी कत्ल के वारदात हमारे सामने आए हैं। लिहाजा इन तमाम वजूहात को भी एड्रेस करने की हमने कोशिश की है। और ये असल कत्ल नहीं है, बल्कि कत्ल के पीछे जो वजूहात हैं, जो अखलाकी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के खात्मे के लिए हम सब आगे आना है। लिहाजा हमने इस मुहिम को लॉन्च किया है। नशे की वजह से हमारे नौजवान सिर्फ इतने बुराइयों में मुलविस हो रहे हैं, बल्कि नशा सिर्फ एक फर्द को नहीं मारता बल्कि पूरे खानदान को मफलूज करता है। और इस्लाम ये पैगाम देता है कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ इंसानी ज़बान से नहीं बल्कि अमली मैदान में आगे आकर इन बुराइयों के खात्मे के लिए हम सबको कोशिश करने की ज़रूरत है। ये मुहिम हमने सिर्फ बाज़ और नसीहत तक महदूद नहीं रखी और खुतबात की हद तक, तकारीर की हद तक ये महदूद नहीं है, बल्कि अमली मैदान में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम इस मुहिम को बनाना चाहते हैं। और ये मुहिम सिर्फ जमात इस्लामी हिंद की मुहिम नहीं है, बल्कि हम अपील करते हैं समाज के मुख्तलिफ तबकात से कि आइए हम सब मिलकर समाज की बेहतर तामीर में हम अहम रोल अदा करें, हम किरदार अदा करें और समाज की पॉजिटिव बिल्डिंग में हम काम करें। हम मजहबी रहनुमाओं से, मुख्तलिफ सियासी जिम्मेदारों से, मुख्तलिफ NGOs के जिम्मेदारों से और फिर मुख्तलिफ समाजी तबकात से भी हम अपील करते हैं कि हम सब मिलकर इन बुराइयों के खात्मे के लिए कोशिश करेंगे। हम कत्ल के वारदात को शहर हैदराबाद से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर खात्मे की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस अहम काज में सब मिलकर काम करें और फिर एक बेहतर समाज की तामीर में, नौजवानों की इस्लाह में, ख़वातीन के अखलाकी मेयार की बुलंदी के लिए, मर्द हजरात की, फिर नौजवान, इन सब की अखलाकी तामीर के लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। ये सिर्फ एक महदूद अफराद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज में बसने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपनी मिल्लत को भी महफूज करें और पूरे समाज में अमन व आफियत को आम करें। इस्लाम बुनियादी तौर पर अमन आफियत का पैगाम देता है। इस्लाम के नाम में ये बात छुपी हुई है कि ये सलामती वाला दीन है। इस पैगाम को हम आम करेंगे और पूरे माशरे में सुकून कायम करेंगे, आफियत कायम करेंगे, जीने भी और सुकून के साथ जिएंगे और लोगों को जीने भी देंगे। यही पैगाम हम तमाम मज़ाहिब के लोगों को देना चाहते हैं और खुसूसन मुसलमानों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं कि हम दुनिया में सलामती के साथ रहने के लिए और दूसरों को सलामती के साथ जीने का हक देने के लिए हम आए हैं। आइए हम सब मिलकर समाज की बेहतर तामीर में अहम किरदार अदा करें। और ये बुनियादी तौर पर मुहिम का मकसद था और इस मुहिम के दौरान हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात हमारे आज़म अली बेग साहब, सिटी सेक्रेटरी और फिर इस मुहिम के एहतराम इंसानियत मुहिम के कन्वीनर इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 1.5-2 माह में शहर हैदराबाद में कत्ल के मुख्तलिफ वारदात हमारे सामने आए हैं और फिर इन कत्ल होने वालों में और कत्ल करने वालों में दोनों में मुसलमान के नाम हमारे सामने आए हैं और हमने देखा कि इन कत्ल के वारदात के पीछे मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। कभी नशा इस की वजह बनी, कभी नाजायज़ ताल्लुकात, कभी बच्चियों का छेड़छाड़, कभी सूद की लानत में मुब्तला और फिर कभी दूसरी गैर अखलाकी हरकतें। इस तरह मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल के वारदात हुए हैं। तो इन वाक़यात को रोकने के लिए हम सब की एक समाजी जिम्मेदारी समझते हुए जमात इस्लामी हिंद ने 18 जनवरी ता 31 जनवरी 2026 एक मुहिम एहतराम इंसानियत के नाम से लॉन्च किया है। हम इस मुहिम के ज़रिए से इन तमाम समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया में अमन फैलाने के लिए आया है। इस्लाम के नाम में ये बात मुज़मिर है
ये सलामती वाला दीन है। यहाँ सबको सुकून और आफियत के साथ जीने का हक है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि पूरे समाज को सुकून के साथ आफियत के साथ जीने के लिए हम सब कोशिश करें। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद की इस मुहिम में जमात के शहर हैदराबाद में मौजूद 38 यूनिट्स, PSF, डेर, GIO, SIO, गोया के पूरा कैडर इस मुहिम में शामिल है, और फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज इस मुहिम के जरिए से की जाने वाली है, जहां हम मुख्तलिफ स्कूल्स में तलबा को एड्रेस करेंगे, वहीं नौजवानों को एड्रेस करेंगे, स्लम एरियाज में लेक्चर्स, वीडियोस और फिर ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ मवाद के जरिए से इसका अवेयरनेस पैदा किया जाएगा, और फिर इस समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिश की जाएगी। इसमें हम जहां जमात का कैडर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, वहीं हम मुख्तलिफ NGOs, मजहबी जिम्मेदारान, खतीब हजरात, सियासी लीडरान और दीगर मुख्तलिफ जहदकारों से हम अपील करते हैं कि आइए, ये काम सिर्फ जमात इस्लामी हिंद का या फिर किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मसला है, और सब मिलकर इस समाज के सुधार के लिए, इन बुराइयों के खात्मे के लिए और नौजवानों की इस्लाह के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हिंद की ये जो मुहिम है, ये सिर्फ 15 रोज़ा मुहिम नहीं है, बल्कि ये काम जमात इस्लामी हिंद इससे पहले भी करती रही है, और इन हालिया वाक़यात की रोशनी में इन एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी जमात इस्लामी हिंद का कैडर ये काम जारी रखेगा, और बुराइयों का खात्मा जमात का मिशन है, और इस मिशन पर हम लोग जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये नशा और नशा आवर मुख्तलिफ अशिया उनकी जिंदगियों को ख़त्म कर रही हैं, उनकी सेहत को ख़राब कर रही है, और ये वक्ती तौर पर आरजी खुशी के लिए अपनी बड़ी जिंदगी को ख़त्म न करें, बल्कि इन बुराइयों से छुटकारे के लिए कोशिश करें, और अगर कोई नौजवान किसी वजह से मुलविस है तो वो आगे आए और एक्सप्रेस करे। मुख्तलिफ NGOs भी हैं, गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, हम इंशाअल्लाह उन नौजवानों की तरबियत के लिए ज़रूर मदद करेंगे, और हमारा कैडर उसके लिए जहां कहीं मुकामी जमात का दफ्तर आपको नजर आए या फिर हमारा कहीं कॉन्टैक्ट नंबर नजर आए, तो आइए हमसे अप्रोच कीजिए, इंशाअल्लाह हम उनकी मदद करेंगे। जमात का हम एक नंबर, मोबाइल नंबर उस पर दे रहे हैं हमारे पोस्टर्स पर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मुलाकात इंशाअल्लाह कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी है, सिटी कमिश्नर से भी है, एंड नारकोटिक्स के जो इंचार्ज हैं SP, उनसे भी हमारी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होने वाली है, और फिर DMHO से भी हमारी मुलाकात होने वाली है। हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल है, और हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं, लोकल SHO से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। हमने अपने मुकामी को भी बात कही, इस जानिब गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से इंशाल्लाह बात करेंगे जरूर। जज़ाकल्लाह, अच्छा मशवरा रहा आपका। कमेटी से अपील करते हैं कि मसाजिद को सिर्फ नमाजों की हद तक महदूद न रखें, इबादत की हद तक महदूद न रखें, बल्कि नौजवानों की इस्लाह, नौजवानों की तरबियत के लिए मसाजिद को मरकज़ बनाएं। हमारे इस्लामिक सेंटर्स आपने देखा होगा, टोली चौकी में हमारा इस्लामिक सेंटर है, याकुतपुरा, मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ यूथ के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, फिर मर्द हजरात के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स, हमारे एक ही इस्लामिक सेंटर जिसमें मस्जिद भी शामिल है, वहाँ मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं। यूथ एम्पावरमेंट का काम भी होता है, फिर वहीं उनकी तरबियत का भी काम भी होता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि इस मस्जिद को पूरा एक ऐसा मरकज़ बनाएं जहाँ इबादत के लिए भी लोग आएँ, और फिर अपने अखलाक की सुधार के लिए, अपनी शख्सियत की तामीर के लिए और अपनी बेहतर ज़िंदगी की तामीर में वो लोग वहाँ मदद हासिल कर सकें। एहतराम इंसानियत जो हमने नाम दिया है, वही है इसके पीछे कि कत्ल के वारदात को रोकना है। ज़ाहिर बात है, कत्ल के वारदात के पीछे कुछ वजूहात हैं, लिहाजा उन वजूहात को भी हम एड्रेस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये 15 दिन ये इससे पहले भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक अवेयरनेस के लिए मुहिम बनाई जा रही है, और इसमें हम लोग ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे, और इसके बाद भी इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा।